Okay, so hello everyone, and I welcome you in this power vocabulary session. And in this session, we always focus on vocabulary, or how can we speak English in more effective way. And yes, vocabulary plays a great role when you want to speak English effectively, because every time you cannot speak English the same way. हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग जब भी इंग्लिश में बात करते हैं हम हमेशा एक ही तरह से बात करते हैं. So if we really want to be a dynamic English communicator, we need to always use some dynamic vocabulary. So dynamic vocabulary means we have to change our vocabulary every time. And for that, last we started proverbs, because proverbs are the way we can use power vocabulary. So in last class, we talked about vocabulary, that it helps us to educate people. You know, it helps us to create a great impact in people's mind. We all talked about, that when we speak vocabulary, we can, speak in a very, very easy way. Generally using them in a best possible way will make you feel more confident than other speakers normally use language. So we have to use vocabulary in an effective way. Last class we talked about let bygones be bygones. Hope you remember last class we did this. Then we talked about let sleeping dogs lie. These are the recap of what we did in the last class. Joy and sorrow sleep in the same bed. So these are the proverbs we did. Restless feet may walk into a snake pit. So these are the proverbs that we did in the last class. So today I welcome you in this proverb part 2. Part 2. Try to listen, try to see, try to understand, try to write, because these are very important. Even listening is also very important. Let's go ahead. Proverbs. Proverbs are old but familiar sayings that usually give advice. So in last class also we talked about that these are basically some advices that we give it to people. Okay, so today's first proverb is do not insult the river god while crossing the river. Do not insult the river god while crossing the river. So this is a one sentence. This is the one sentence. Do not insult the river god while crossing the river. हम लोग जब वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं अभी, सो बट हमारे प्रीवियस कुछ क्लासेस में हम लोग ने एक एक वन वर्ड के वोकैबुलरी हमने देखा. कुछ नाउन्स थे, कुछ एडजेक्टिव्स थे, कुछ वर्ब थे. सो हम लोग क्या करते थे, एक पूरे सेंटेंस में हम उसको एडजस्ट करते थे, नाउन को, एडजेक्टिव्स को, वर्ब को. बट अभी जो प्रोवर्ब्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक इन इटसेल्फ दे आर अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है. हमने इससे पहले जो वोकैबुलरी क्लासेस किए हैं उसमें हम लोग ने वर्ड पढ़ा था और वर्ड को हम लोग सेंटेंस में ऐड करते थे. बट अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है प्रोवर्ब. मतलब प्रोवर्ब इटसेल्फ इट इज अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है. तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको हम कैसे यूज करें. यू कैन यूज इट एनीवेयर बिकॉज इटसेल्फ इट इज अ सेंटेंस. इसमें कंफ्यूजन कम है, बट आपको मीनिंग जानना होता है. डू नॉट इंसल्ट द रिवर गॉड वाइल क्रॉसिंग द रिवर. इसका मतलब क्या होता है, हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए. इन नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो उसका मतलब होता है हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, या हमें उनको उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए जिस पे हम डिपेंडेंट हैं.
हमें उनको उल्टा पुल्टा भला बुरा नहीं बोलना चाहिए जिसमें हम डिपेंडेंट हैं। जैसे सपोज एक बच्चा है, वो अपने पिताजी पे डिपेंडेंट है, तो अपने पिताजी को उसको उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसके पिताजी के ऊपर, राइट। जैसे एक एक जॉब है, वन जॉब इज देयर एंड वहां पे बॉसेस हैं, बॉस के सबॉर्डिनेट्स हैं, तो सबॉर्डिनेट को अपने बॉस को उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसके बॉस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो डू नॉट इंसल्ट द रिवर गॉड वाइल क्रॉसिंग द रिवर। इसका मतलब है कि हमें उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए जिसपे हम डिपेंड करते हैं। नेवर स्पीक स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली मतलब भला बुरा बोलना, उल्टा सीधा बोलना। नेवर स्पीक स्कॉर्नफुली, तो ये स्कॉर्नफुली भी एक अच्छा वर्ड है, यू कैन, आप कहीं पे लिख सकते हो। स्कॉर्नफुली मतलब जो कान में चुभे वैसी बातें, स्कॉर्नफुली। नेवर स्पीक स्कॉर्नफुली अबाउट अ पर्सन यू डिपेंड ऑन। जिस इंसान में आप डिपेंडेंट हो उसे कभी बुरा नहीं बोलना है आपको। तो आप इस पिक्चर को देख के भी समझ सकते हो कि ये जो लेडी है ये डिपेंडेंट है, उसको एक जगह से एक जगह जाना है, बट वो फिर भी उल्टा सीधा सामने वाले को बोल रही है। अब सामने वाला चाहे तो क्या करेगा, उसको उतार देगा, बोलेगा कि भाई आप अपना रास्ता नापो। तो भाई जब हम किसी पे डिपेंडेंट है हम उसको उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं, होप यू विल अंडरस्टैंड। I feel overburdened due to my boss, but nothing can be done as we do not insult the river god while crossing the river. अच्छे से समझिए सेंटेंस को, आप समझ में आएगा। मुझे काफी ओवरबर्डन फील महसूस होता है जब मैं काम करता हूँ। मेरे बॉस मुझे इतना सारा काम देते हैं लेकिन उनको मैं कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ। As we do not insult the river god while crossing the river. Try to understand the sentence. This is very important. I feel overburdened due to my boss, but nothing can be done. कुछ हो नहीं सकता because आपको पता ही है भाई, जहाँ का खाते हैं उनको हम क्यों बोले उल्टा सीधा। Okay, so we'll go for the next sentence. Don't worry, if you need it, I'll show you again. Do not insult the river god while crossing the river. Be a good and sincere son. Do not insult the river god while crossing the river. Be a good and sincere son. एक अच्छा बच्चा बनो, अच्छे लड़के बनो। किसी अपने पिताजी से, अपने पेरेंट्स से कभी उल्टी सीधी बात मत बोलना, तुम उस पर डिपेंडेंट हो। तो इतना कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, दैट लाइन इज एनफ। डू नॉट इंसल्ट द रिवर गॉड वाइल क्रॉसिंग द रिवर। ये इटसेल्फ इज अ सेंटेंस। तो ये आप कहीं पे भी डाल सकते हो जहां पे आपको सामने वाले को बोलना है कि भाई आप उल्टा मेरे पे डिपेंडेंट हो और उल्टा मुझे गाली दे रहे हो आप। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे हम सामने वाले को बोलते हैं दैट यार यू शुड, you know that you depend on me and still you are treating me so bad. तो वहां पे आप बोल सकते हो भाई you are insulting the river god while crossing the river. Okay, I'll show you one more. जैसे एक कस्टमर है, ये सॉरी एक सेलर है। फॉर एनी सेलर कस्टमर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एवरी सेलर कस्टमर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब अगर एक सेलर कस्टमर से उल्टा सीधा बात कैसे कर सकता है, भैया आप कस्टमर पे डिपेंडेंट हो, यू आर सेलिंग समथिंग। इफ कस्टमर इज नॉट देयर तब तब एक बेचने वाले का कोई कोई अहमियत ही नहीं है। कस्टमर इज गॉड, आप उन पे चिल्ला नहीं सकते। कभी कभी देखोगे ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले कस्टमर पे चिल्लाते हैं। क्यों चिल्ला रहे हो भाई, ये कस्टमर है इसलिए आपका घर का चूल्हा जल रहा है। थिंक अबाउट इट।
To be a successful trader, one should never ignore or criticize their customers. Being a good trader, one should not insult the river god while crossing the river. Understand? Okay, the next one is he who pedals two canoes sings. He who pedals two canoes, canoes मतलब boats को भी canoes बोलते हैं. Okay, so boats भी हो सकता है यहाँ पे. He who pedals two boats sings. जो दो बोट पे पैर रख के चलने की कोशिश करता है, दो चीजों पे पैर रख के चलने की कोशिश करता है, दो करियर पे टारगेट करता है, दो लोगों को प्यार करता है, दो लोगों से शादी करता है, दो मतलब जहां पे लॉयल्टी की जरूरत होती है, बट आप यू थिंक अबाउट टू थिंग्स एट द सेम टाइम, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ना ए कर पाओगे ना बी कर पाओगे. सो द मीनिंग गोज डू वन जॉब एट अ टाइम. In simple English, it is said do one job at a time. एक टाइम पे एक काम करो. दो काम करोगे तो कोई काम भी सही नहीं होगा. हम लोग बहुत समय ऐसी बातें करते हैं. So many times we speak in these way. भाई दो चीजों पे दिमाग लगाओगे तो कुछ भी सही नहीं होगा, डूब जाओगे. You should focus on one thing, not two things. He who pedals two canoes sings मतलब डूब जाना. Sinks मतलब डूब जाना. ये वर्ब है. हाँ, sink is a verb. So he who pedals two canoes sings मतलब जो बंदा है जो दो बोट्स पे पैर रख के चल रहा है वो गिर जाएगा. Let's see how we can make the sentences. Do what you love. Do not try to pedal two canoes, it will sink. Do what you love. जो अच्छा लगता है उसको करो. Do not try to pedal two canoes, it will sink. दो चीजों पे दिमाग मत लगाओ. जो अच्छा लगता है, जिसको प्यार करते हो, उसके साथ चलो. चाहे वो कोई इंसान हो या चाहे वो कोई काम हो. Do what you love. Do not try to pedal two canoes. It will sink. It will sink. Do what you love. Do not try to pedal two canoes. It will sink. Okay, let's see the second one. It's good to be multitasker, but remember, he who pedals two canoes sings. It's good to be a multitasker. बहुत लोग हैं जो एक साथ बहुत सारा काम करते हैं. Multitasker. But remember, भूलना मत, you know, एक साथ अगर सब चीजों को करेंगे तो कभी कभी फंस भी सकते हैं. कुछ गलती भी हो सकती है जब काम भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं. सो वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग. तो दिमाग रखिएगा, मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में दिमाग बहुत सारी चीजों के ऊपर है, सेंटर्ड है. सो देयर इज अ रिस्क दैट आप गलती कर सकते हो. It's good to be a multitasker, but remember, he who pedals two canoes sings. Let's see the next one. The sentence बहुत अच्छा है, आप लोग समझ जाओगे. His wife left him for his extramarital affair. Somehow he forgot. He who pedals two canoes sings. तो उसके वाइफ को पता चला कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. तो वो एक इंसान एक साथ अपने बीवी को भी देखता था, किसी और को भी देखता था. तो उसके वाइफ को पता चला तो उसने उसे छोड़ दिया. So his wife left him for his extramarital affair. Somehow he forgot. शायद वो भूल चुका था कि भाई एक साथ दो चीजों पे दिमाग लगाओगे तो डूब जाओगे. His wife left him for his extramarital affair. Somehow he forgot. He who pedals two canoes sings. It's a very wonderful example. Okay, very nice proverb.
Fire does not extinguish fire. Fire does not extinguish fire. आप आग को आग से मिटा नहीं सकते. Fire does not extinguish fire. बोलते हैं ना, अगर कोई आपसे झगड़ा कर रहा है तो आप भी झगड़ा करोगे तो चीजें और बिगड़ जाएंगी. कोई आपको गाली दे रहा है, आप भी गाली दोगे तो there will be a problem. So that's the reason we say fire does not extinguish fire. इस English का मतलब होता है vengeance. Vengeance is not the right answer to a bad deed. Vengeance. Vengeance is not a right answer to a bad deed. Vengeance मतलब बदला लेना. बदला लेने की जो एक टेंडेंसी होती है लोगों का कि मेरे को बदला लेना है. Vengeance. Vengeance is not the right answer to a bad deed. Fire does not extinguish fire. It's a wonderful proverb. Okay, we'll see some example. It's better to be cool and calm. Remember, fire does not extinguish fire. It's better to be cool and calm. Remember, fire does not extinguish fire. ज्यादा गुस्सा मत दिखाइए, ज्यादा बदले की भावना दिमाग में मत रखिए, बिकॉज आग को नहीं रोक सकती. It's better to be cool and calm. Remember, fire does not extinguish fire. He managed his anger smartly and kept cool. He knew it very well. Fire does not extinguish fire. उसने अपने क्या बोलते हैं, एंगर को काफी स्मार्टली मैनेज किया और शांत रहा, क्योंकि उसे पता था कि फायर डज नॉट एक्सटिंग्विश फायर. तो सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हो और बनाओगे भी when I'll give you a topic and you have to make a very good and simple sentences. He managed his anger smartly and kept cool. He knew it very well. Fire does not extinguish fire. Okay, we'll go for the next sentence. It is wise to discard ill feel about someone. Remember, fire does not extinguish fire. ये बुद्धिमानी वाली बात है कि हम किसी के बारे में इल फील मतलब खराब चिंता किसी के बारे में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायर डज नॉट एक्सटिंग्विश फायर. Okay, the last for the day is every tree feels the force of the wind. Every tree feels the force of the wind. बहुत अच्छा है ये proverb. Every tree feels the force of the wind. आप लोग में कोई है जो बोल सकता है इसका मतलब? Is there anyone who can? क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? Anyone who want to speak? Every tree feels the force of the wind. It's a wonderful proverb. Like कोरोना पेंडेमिक, हर कोई प्रभावित हुआ, कुछ ऐसा होना जिससे हर कोई प्रभावित हुआ. हाँ, पूरे तरह से आप सही नहीं हो. यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोर्स ऑफ द विंड मतलब जो एक काइंड ऑफ आंधी. हर पेड़ को आंधी को एक बार ना एक बार सहना पड़ता है. मतलब हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ना कभी आते हैं, चाहे वो अमीर हो
या चाहे वो गरीब हो, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं. एवरी ट्री फील्स द फोर्स ऑफ द विंड. ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोलेगा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है. हमें लगता है हमेशा जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम ही अनलकी हैं, हमारे साथ ही होता है. लेकिन अगर थोड़ा बाहर देखोगे तो हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है. सो वही पे बोला जा रहा है कि आप गरीब हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, but every tree feels the force of the wind. In English, we say, whether rich or poor, everyone is prone to stress at one time or the other. बुरा वक़्त Everyone सभी is पर आता है शायद। prone. हाँ, बुरा समय सब पे आता है. वो चला भी आता है, लेकिन बुरा समय सबका आता है. आप आता है। जितना भी अपने को बोलो कि भाई मेरे लाइफ में कुछ बुरा नहीं होता या जो भी हो, एक होता है कि मेरे लाइफ में बुरा बहुत होता है लेकिन आई नो हाउ टू हैंडल, वो अलग चीज है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप रिच हो या पुअर हो, बुरा समय सबका आता है. इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनने का, अपने पैसे पे भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. बुरा समय सबका आता है. স্রোতের प्रोन বিপরীতেও হেঁটে যেতে হয়। एब्सोल्युटली मोवा. या प्रोन प्रोन टू मतलब चांसेस, यू नो चांसेस होना. देर आर चांसेस, प्रोन टू, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ही हैज मोर प्रोबेबिलिटी. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग, अगर कोई हेल्प करे तो अच्छा रहेगा. प्रोन मतलब जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है उसके साथ संभावना गलत होने. संभावना संभावना, एब्सोल्युटली राइट, संभावना. प्रोन टू स्ट्रेस. एवरीवन इज प्रोन टू स्ट्रेस. सबके लाइफ में स्ट्रेस की संभावना होती है, आज नहीं तो कल. Let's see some sentences. Every tree feels the force of the wind, so it is better to be humble and mentally tough to face the challenges. इसीलिए बेटर है कि आप थोड़े हम्बल हो. हम्बल मतलब जो जमीन पे पैर रखता हो, उड़ता नहीं हो. आप हम्बल हो, नम्र हो, नम्रता, नम्र हो, और दिमाग को इतना स्ट्रांग रखे कि आप कोई भी चैलेंज को फेस कर सके. सबके लाइफ में प्रॉब्लम, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, व्हेन वी टॉक विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव, बहुत से हम लोग बोलते हैं यार प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, इतना टेंशन मत लो, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है. तब आप ये प्रोवर्ब को यूज कर सकते हो, बॉस एवरी ट्री फील्स द फोर्स ऑफ द विंड, इट इज नॉट यू. सिर्फ तुम्हारे लाइफ में नहीं, इट हैपेंस टू एवरीबॉडीज लाइफ. एवरी ट्री फील्स द फोर्स ऑफ द विंड. जब आप ये सब सेंटेंसेस यूज करोगे ना, योर इंग्लिश विल बी मोर, इट विल हैव मोर क्वालिटी इन इट. और ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस है मतलब जो आपको एकदम याद कर लेना है, यू हैव टू गेट बाय हार्ट, और सही टाइम पे उसको यूज करना है. ओके, विल सी वन मोर सेंटेंस. Never take life easily. Be ready for all that come before you. It is universal that every tree feels the force of the wind. लाइफ को इतने आसानी से ना लें, और हमेशा हर चीज के लिए पहले से तैयार रहें. ये सच्चाई है कि भाई हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. Never take life easily. Be ready for all that comes before you. It is universal that every tree feels the force of the wind. Okay, we'll see one more last example. It is universal that every tree feels the force of the wind. Those who sail needs to be mentally and physically strong. Those who sail, यहाँ पे जो sail है, SAIL, मतलब जो लोग
नाव चलाते हैं या जहाज, नॉर्मली नाव चलाना। सो यहाँ माझी पे सर, यस, माझी। नॉट रियली, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जीवन एक समुंदर है, एक नदी है, और हमें ये अपना नाव चलाना पड़ेगा। उस हिसाब से पकड़ो। इट्स नॉट अबाउट माझी। जो भी नाव चलाता है अपने जीवन में, उसको बहुत समय उसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी जो नदी का जो स्रोत है, जो भाव है, वो चेंज हो सकता है। कभी ज्यादा उसमें करंट हो सकता है, समुंदर हो, नदी हो। तो आपको अपना जो नाव है, अपनी जिंदगी का नाव, उसको काफी अच्छे से चलाना है। It is universal that every tree feels the force of the wind. Those who sail, जो नाव चलाते हैं, needs to be mentally, physically strong. यहाँ पे जिंदगी का नाव चलाने की बात हो रही है। Myself. Now we'll see the topic of the day. The topic of the day for 5 minutes of preparation, and you all have to speak, and I want everyone to participate. The topic is good times come to good people. जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। Good times come to good people. I want everybody to participate. Everybody to participate. Okay, we have enough time. हमारे पास काफी समय है. So I'm giving you 5 minutes. आप इसको तैयार करो। अगर 4 नहीं तो 2 प्रोवर्ब के साथ करो। But I want कि you should all speak. और जो लोग अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। Times?